Okay, so earlier in our lecture we discussed about some basics of physics. What we discussed, the basics of physics, we discussed scalar and vector, and then we saw the representation of a vector, how a vector will be defined. Then later we discussed what are some standard directions. So आप लोग को याद है standard directions, how we define standard directions in Yes, sir. physics. These are for reference. In physics, what we choose? I, J, and K cap. Very good. So in physics, we chose I, J, and K cap. Okay. Likewise, like these are for east, west. So east के लिए क्या हो गया I cap and west के लिए opposite of I cap, that is minus I cap. Okay. Likewise, we chose. So इसको representation हमने सीख लिया हुआ था. एक point हमने बताया हुआ था कि कभी अगर वेक्टर के बाहर नेगेटिव लगा है, so that negative signifies what? That negative belongs to Opposite. Opposite direction. it belongs to Direction. direction. So if I say, yeah, see, so if I say that a force is acting in this direction, a force of let's say 50 Newton. So if I say minus 50, so what I mean by this minus 50? Is acting the in opposite opposite direction. Acting in opposite direction. Exactly. So that the only meaning of it is that it's acting in opposite direction. Okay. Okay. Then we discussed some mathematics of vector और उसमें मैंने क्या समझाया कि वेक्टर को ऐसे नहीं ऐड करते कि 2 + 3 always will be 5. So मैंने बताया 2 + 3 को कैसे डील करेंगे, विल डील विद द फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले में क्या आता है? cos theta. So that's why we should learn the trigonometric operators. So मैंने पहले बता दी है ऑलरेडी trigonometric operators. I guess आप लोगों ने लर्न कर ली. ठीक है, अगर लर्न कर लिए बेटर है, नहीं है सो डोंट वरी, विल बी यूजिंग, बट आपको लर्न करना पड़ेगा. सो तभी बेटर रहेगा, अपन डिस्कशन अच्छे से कर पाएंगे. ओके, सो टुडे Sir, I have a doubt. Yeah. As you said that the two vectors made theta angle with each other. Yeah. Then, how does it means? Can you give me example? Yeah, sure, definitely. What do we mean by these the vectors acting at an angle? You can visualize them with two acting force. It's like two students are there, someone is pulling it this side and another one is pulling this side. So this is a very simple scenario. If I say that this person has pulled it with the 100 and this person has a 70, so which side the box will move? You already know which side. At 100 side. Yeah, right hand side. 100 side. Towards the 100 side. That's fine for a simple visualization. But when the things come a bit in a complex manner, like both the two students are pulling it in same side like this, so definitely it will go right side. Yes. Right Yeah, both side, are sir. pulling. And what should be the amount that this box will feel? This wall Sir, box it will be feel, pulled one 170. side more. 70. yeah, it will feel a force of 170. Now let's think that the person pulling it is in a different direction. So this person was pulling with the 70 but in a different direction. So now here comes that actual vector symbolization. Kya? If the forces are at an angle theta, then the net will not be 170. That is my whole point. Got the idea? Yes, sir. You can feel it simply. If they are moving in the same direction, it will be added up. And if they are acting in opposite direction, it will be subtracted. But when it is an angle, the resultant will be an vector summation of these two, जिसकी mathematics हमें सीखनी पड़ेगी. But that is ये sure है, this is for certain कि answer 170 नहीं होगा. Clear ना? Yes, sir. Yeah. So its use is to give you an idea what will happen if the two things are not in same or opposite direction. What we know is just common sense.
अगर सेम है विल ऐड, अगर अपोजिट है विल सब्ट्रैक्ट. वी डोंट नो अपार्ट फ्रॉम दीज टू. हाँ, उसके लिए हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं. क्लियर ना? Yes, sir. Yeah, so let's see it. Okay, so let's see it with the same example like earlier I said. Let's say, let's fill it. Find the force felt by the box. Find the force felt by the box in all cases. Let's say the given cases are number one, very simple. This is the box, और इस पे हम क्या क्या फोर्सेस लगा देते हैं? इधर की तरफ 100 लगा देते हैं, इधर की तरफ लगा देते हैं 70. व्हाट विल बी द आंसर? 30. क्लियर ना? सो द आंसर इज इट विल फील F net. I'll say net force it will feel 30. Which side? Right side. राइट साइड. सो अभी तो मैं राइट साइड को लिख सकता हूँ ना फिजिक्स में. राइट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. क्या लिखूंगा मैं? I cap. I cap. वेरी गुड यार, यू आर गेटिंग इट वेरी फास्ट. दैट्स वेरी गुड. अभी देखो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, बॉक्स, और मैंने फोर्सेस भी बदल दिए. नाउ दिस पर्टिकुलर फोर्स इज 30 and another force is acting 40. Now what do you think, what will be the resultant force? 70 Newton. F net it will be 70. अच्छा प्रॉपर लिख 70. देते हैं यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं. It is like 100 I cap minus 70 70 I cap. I cap. So the result came out to be 30 I cap. But here it is 30 I cap as well as 40 is also plus. So the answer came 70 I cap. Now let's see the third scenario which you cannot anticipate in a regular manner. ये दो तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ गए. अभी ये वाला देखते हैं. Let's say the forces are acting in like this 30 Newton and another one is acting perpendicular. It is let's say 40 Newton. So can you answer कि force क्या होगा? What will be the net feeling? नहीं, आप नहीं बता सकते हो. समझ आया ना? आप नहीं बोल सकते हो कि टेन होगा या समेशन होगा. ओके, सो आप ये नहीं बता सकते हो कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा. बता सकते हो क्या? नहीं. सो इसका मतलब वी शुड यूज द फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला? लेट मी रिकॉल. व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग यू कैन ऑलवेज यूज द रिजल्टेंट फॉर्मूला एज, कैसा? a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा था. रिमेम्बर? याद है यार? Plus B. a स्क्वायर प्लस b square plus प्लस 2ab ab एक्स्ट्रा multiplied क्या आ by गया था? cos. cos theta. Now the thing is, what is the angle between these two? 90 degree. Yes, so theta is 90 degree. अभी आपको यार याद रखना है, what is the value of cos 90 degree? 0. 0. 0. तो यार देखो easy हो गया ना. That means this thing, this whole thing is going to be 0. So I'll make root of 30 square plus 40 square plus, अब अभी क्या हो जाएगा? 2 into 30 into 40. But the good thing is कि cos की वैल्यू कितनी है? 0. ये तो पूरा 0 हो गया ना. सो रिजल्टेंट केम आउट टू बी, क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900. 40 का स्क्वायर 1600. सो इट केम आउट टू बी, ऐड कर देते हैं 2500. 2500. दिख रहा है ना? अच्छा एग्जांपल क्या है इसका? स्क्वायर रूट 50. 50. So see, the answer is very unpredictable. See, from 30 and 40, what you got? 50. 50. What Clear is na? R in this equation? So my logic is कि you need to use this equation whenever finding the result value. You can feel it, not a problem. You feel it that if you put these two sort of forces, do you think that the object will move in this middle line? Do you think? Should it move in No, the sir. middle, or should it move in the middle or somewhere
like more inclined That towards depends 40 on or the 30? theta angle, sir. No. Let's say they are at 90. Let's see the common sense, okay? तो क्या लगता है? Suppose I make it 30-30. तो एकदम middle में जाना चाहिए ना? Yes. Yes, sir. Because both are pulling with the same. Now I make it 50. So मतलब क्या? कौन powerful ज्यादा है? 50. 50. तो इसका मतलब box will move somewhere towards more inclined towards Like 50. northeast, somewhere Yeah, like that. somewhere like more inclined towards the north. समझा ना? Yes, sir. हाँ, but the point is what force it will feel. So it will not feel like 30 plus 50. It will not feel 80. How we'll check how much it will feel? With the formula of resultant of these two forces. Getting the idea what is the use of this formula? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It will give you the actual final value which this box is going to feel. Clear now? Yes, sir. Okay. Now the thing is 90 degree will come more and more often. मतलब बहुत frequently आएगा. क्यों? To make the question easy. Why? Because cos is 0. 0. तो मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं देने के लिए 90 बहुत बार आएगा. तो I think we should learn. We should not write this formula again while we know that the cos is going to be 0. So we Sure. can learn it with a simpler logic, I guess. What? If forces are perpendicular, all right, if forces are perpendicular, then their resultant, ये क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल वे है, देखो It फील will करो be a कि ये square plus b square Exactly. whole root. Yeah, so it will give you a feeling of, I don't know resultant will pass from which side. तो कुछ चीजें मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए. क्या कि अगर a और b इक्वल है तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? बीच में से. इफ हाँ. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऐसा फिगर दिखेगा इफ a इज इक्वल टू b. अच्छा सोचो अगर b ज्यादा होगा तब. So it will be more towards the north. Exactly, whoever is higher, it Sir, will be inclined. Yeah. sir, if the forces applied are same, so the object should be at rest, na? No. That is the point. If you pull like left and right, you apply 10 and 10, then the object will be at rest. That is the whole logic to explain this thing. कि earlier we know कि अगर 10 और 10 opposite लगाएंगे तो रुक जाएगा. If you put these 10 in the same direction, क्या वो रुकेगा क्या? नहीं sir, because this is तो not double vector feel होगा. summation. Exactly. So that means if they are at 90 degree, it's not like they will cancel. They will give some resultant for which we'll use the formula. Okay. And definitely box will move in the middle direction. Like this box will move. Okay. So that's what the whole point is, teaching you the vector. Because earlier you have only idea for what? Simple Magnitude. solving कि left and right लग रहा है so subtract कर दिया, same direction लग रहा है तो add कर दिया. What will happen अगर the direction theta is different? Clear ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, ठीक है. So ये point है. So logic, I am telling you this logic कि अगर वो equal है so it will pass from the middle. अगर b ज्यादा है so it will be inclined towards b. Clear ना? अच्छा ये लिखने की जरूरत है और it is very clear from the figure. It is clear, sir. It is clear now. What I want to explain is whichever force will be higher, the box will move towards that force only. Means it will be more inclined towards that force. So now I can say the result will pass somewhere near about A. But in all the cases, in all three cases, the formula is going to be same. If A is greater than B, in all cases, the value, the magnitude of resultant. Sir, sin is sin is
perpendicular upon hypotenuse, right? Yeah, perpendicular upon hypotenuse. So the resultant of magnitude will be, I can learn, I know कि cos वाला 0 हो जाने वाला है. So I'll write, I learn it like a Pythagoras, feel it like a Pythagoras. Two things are in 90 degree. Two things are in 90 degree. So you can use like कि the result is sort of hypotenuse. So कैसे hypotenuse calculate करते हैं? Root of this square plus this square. This square, yeah. Clear ना? So you can just remember this with these two parameters. Now why I am telling you कि ये learn करना important है, you will get the idea अभी. अच्छा, अभी problem यार मेरे पास ये आ रहा है. Think about the problem कि how I'll say कि at what angle it will move. I have given you this idea, which side it will move. Have I given you like the actual value at what angle it will move? No, sir. No. So for this we need to use that trigonometry function. Clear? Think like this. Okay. I have given you the magnitude of resultant. Fine now. You can learn this now easily. Yes, Yeah. sir. Yeah. I'll explain the direction of resultant. पहले मैंने basics बता दिया है. Now I'll solve the direction of resultant. The direction of resultant. Okay, the direction of resultant. So it's more like कि आपको बताना है at what angle north east से कितने एंगल पर वो मूव होने वाला है. So it is like कि ये A था, ये B है और मुझे चाहिए कि ओके अभी ये इक्वल नहीं है. So it will move something here. Let's say ये assume कर लेते हैं somewhere here. Okay, now the point is कि कैसे एंगल फाइंड करें, किसके साथ? इसका A के साथ. The direction of resultant is to find what angle it will make with the A. So it will always be clockwise. Yeah, but how to find the value? So for a value you can use the logic. What value stands on the base? What sort of value is being used on the base? I know it is A. Which sort of value is being used in the perpendicular? Which sort of value is being used? B. B. So see, this is a more of a logical learning. This is a more of logical learning that this direction you can resolve in the form of given data like B and A. So आपको याद है एक triangle में how to relate this perpendicular and base? Sir, Which parameter? Yeah. sir, the hypotenuse is like Not the derived. hypotenuse. We don't need the hypotenuse. We need to relate these two, and these are related with the third parameter known as tan. Yeah. Remember, what Yes. is the sign? What is the sign? It is this perpendicular divided by Hypotenuse. hypotenuse. Cos What is is the cos? base by Base divided by hypotenuse. hypotenuse, and then comes Tan is sine upon cos. yes, tan is sine upon cos. Then the result will be perpendicular upon base. So what you can do? Do not put that much of pressure in your mind. Just learn it that the directions are always seen as a tan theta, and the tan is perpendicular over base. So I'll say angle from its angle from axis A. From which axis A? मतलब A जिस साइड पे है तो उसका एंगल कितना आ जाएगा? tan अल्फा. अगर A साइड से चेक करोगे, this is our alpha. तो what will be the perpendicular? B upon base will be A. Now think the opposite part. क्या? If the angle is measured from B, think about it. If the angle is taken from B, usually इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. because अभी आप सोचो ना, हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हो? इधर से ही स्टार्ट करते हैं ना, 0.
ऐसा रिवर्स आके मेजर करते हो क्या कभी यार? No, sir. So Agree majority ना? of the times A will be the base. A will be the base, but let's say कि physics है, books मतलब they will ask different and different sort of questions, so you must have a bit of idea कि what will happen if you measure the angle from B. So if the angle is taken from B, I'm just So sir, again we have to listing work it. clockwise, so it will Yeah. become opposite. Exactly. So then you will make it, you'll need to make the things in opposite direction. Like I said, this is the result. Okay, but the question is asking this angle only. So with respect to this angle, what will be the perpendicular? So with respect to this angle, this will feel as a perpendicular, na? And you see, Yeah. this is very parallel to A. This is very parallel to A. And the base will be this B. So see, if you are writing the angle from the B, then tan, I cannot use the alpha word. So I'll use some different letter, let's say. Different letter, let's say beta. What? अच्छा beta से confuse हो जाओगे. Let's use it alpha dash. Alpha dash. Dash means some different alpha, okay? So अभी क्या हो जाएगा? Perpendicular is A and base is B. But ये बहुत ही रेयर पूछा जाएगा. आप हमेशा याद रखें what is the logic. चलो कोई लॉजिक बताए, how to remember these things. क्या लॉजिक दिख रहा है? जिस चीज से एंगल लिखते हैं that thing comes in denominator. Denominator, yeah. Clear now? Definitely. If the angle is measured from A, so it's B by A. If the angle is measured from B, so it will be A by B. A ये by line B. clear की नहीं बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Logic is clear now. So from which axis the angle is asked, you can just use this pattern. Clear now? Yes, sir. Okay, so let's move. Let's see the question. Okay, let's see it through the example. So the example, find at what angle the object will move. At what angle the object will move with respect to the larger force. With respect to the larger force. Clear? So ये let's say आपको question में given था. So we had this box and there were two forces acting. So this one was 80 Newton and this one is 60 Newton. Let's say. Now, अभी बताओ यार, बता सकते हो आप, सारा कुछ बता सकते हो. किस वाले से एंगल पूछा है? चलो मैं उल्टा कर देता हूँ. उल्टा करते ना, क्योंकि वी आर इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग इट फ्रॉम दिस. सो मैं हायर वाले को ऊपर रख देता हूँ. अभी आपको आ जाएगा, एकदम लॉजिक आ जाएगा. आई नो दैट टू फोर्सेस आर एक्टिंग, सो बॉक्स विल मूव not in the middle. Why? Because it is, Inclined towards north. yeah, so it will be inclined towards north somewhere here. ठीक. So अभी बहुत ही क्लियर है. If I ask you angle from 80, so पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? एंगल फ्रॉम 80 न्यूटन. कहाँ से? हायर फोर्स से पूछा हुआ है. सो लॉजिक क्या था यार? बहुत ही स्ट्रेट लॉजिक था. जो फोर्स से पूछा है उसको हमेशा किस में रखते हैं? Denominator. डिनोमिनेटर में. क्या ये लाइन मैं लिख दूं या आप लोग समझ गए, लर्न रखेंगे? समझ गए sir. समझ गए ना, लिखने की जरूरत नहीं है. वही तो डिफरेंस है ना, जो लेक्चर में रहेगा वो इस चीज को समझ जाएगा इजीली. चलो देखें. सो बताओ यार क्या होना चाहिए देन? tan alpha should be what should be in denominator? 80. 80. So then tan alpha will be 60 over 80. थोड़ा सा सॉल्व कर ले, it will result out to be 3 over 4. अभी यार if you do not know this value तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा ना. समझ आया ना?
So you So, must sir, have learned it it. should be 37 degrees. वेरी गुड यार, वेरी गुड। लर्न था या देख के बताया? नहीं सर, देख के बताया सर। ओके ओके ठीक है यार, ये लर्न रखना है यार, अदरवाइज आप लोग ऑप्शन आंसर नहीं कर पाओगे ना। समझ रहे हो Yeah. मेरा पार्ट? Yes sir. हाँ, सो आपको लर्न होना चाहिए। तो नाउ वी कैन कंपेयर दैट दिस इज द वैल्यू इन 10। अच्छा, कभी कभी आप सोचोगे सर ये वैल्यू मैं साइन में लिख दूं, तो देन यू कैन नॉट कंपेयर ना, यू कैन नॉट कंपेयर 10 विद द साइन। सो फॉर दैट you need to search in the table of 10 only. So what will be the answer? Answer will be 37 degree. अच्छा, किस डायरेक्शन में है ये? टुवर्ड्स नॉर्थ ना? Towards north, yes. हाँ, so it is 30 degree 7 from north actually, from north। और किस साइड? टुवर्ड्स ईस्ट। ये समझा हाउ टू राइट एंगल? Yes sir. या सो मुझे लगता है अभी क्लियर है। सो आइडिया समझ आया कि मैंने क्यों ऐसा पॉइंट बताया, जानबूझ के मैंने 80 को ऊपर रखा, जिससे आप लर्न नहीं कर लो कि tan सर आपने तो बताया था कि tan अल्फा क्या होता है, a by b होता है। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज। ये कब होगा a by b? व्हेन द एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू b। और b by a कब होगा? अगर वैसा होता तो सर 53 बन जाता एंगल। हाँ देखो, अभी एक एंगल आ गया ना, तो फिर आप समझ जाओगे कि 53 हो जाएगा। क्लियर ना? Yes sir. सो दो चीजें क्लियर हुई हमें, रिजल्टेंट क्लियर हुआ और हमें उसका एंगल देखना क्लियर हुआ, है ना? Excuse me, sir. Yes sir. या एंगल कैसे लिखते हैं वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? this one, how to pick this angle? No, you had written 37 degree from north towards east. I didn't. This one. Yeah, okay, I'll explain the angle writing. Okay, angle representation क्या? एंगल नहीं, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन क्या? Yes, sir. डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन। So let's see how to write a direction. We'll see. So there are some definite direction, those you already know. So I'll make a chart of like northeast sort of thing. So this is east, west, north, south. So there are four elementary or supplementary directions which you, I guess you know. These will be called, this will be called NE. This will Northeast. be NW or WN? बताओ। NW sir, northwest. Not WN? No. No sir. Okay, NW। फिर ये SW और फिर SE. SW। Very good. So north and south are taken as a reference while writing sidewise. Okay. इसमें कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, west north means the same, but in writing purpose we usually do not pick west and east as a reference. What we pick? North and south. Clear ना? ठीक है। Now अभी हम reference लिखते हैं। So yeah. Sir, I not understood that. How do we get answer 37? Okay, you were asking this 37. Actually, from this value I picked. In the earlier lecture, I asked everyone to learn this table of angles. I asked everyone to learn this table. Then only you can answer the fixed value. So in the Sir. table, yeah, in the table of 10, you can see the 3 by 4 is a 37 degree value. Sir, I had a question. Yeah, just a minute. Have you got who asked this? How we got this 37? Divija? Divija, is it clear? That you have to learn these values. हाँ, पूछे आप? Sir, Anas? why do we consider it as angle alpha when we can say it is like tan alpha when we can say it is tan theta? Yeah, it is like notation only, means like there are 4 students, so they will have a fixed name, like suppose Divija is there, Anna is there, likewise the students. Abhi thing is, abhi मुझे कुछ भी explain करना है to any student, I can pick any student ना. So it's just the name, it doesn't matter. If I say, suppose the question belongs to Divija, Divija has asked some question, okay,
बट आई आंसर कि अनय हैव यू गॉट इट. सो इसका मतलब ये नहीं कि दिव्या को नहीं समझ आ रहा है. आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस. You Okay. can choose whatever you wish. ठीक है. So to not get confused, each of you has a specific name. Like that, angles have a specific name. So usually जो main vector होते हैं उनके बीच के एंगल को हम थीटा नेम देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको क्या नेम देते हैं? अल्फा. दिस इज द कॉमन स्टैंडर्ड. आपका मन नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल कॉल दिस वन एज अल्फा एंड विद द रिजल्ट आई विल कॉल थीटा. सो आपके फॉर्मूले बदल जाएंगे. जब आप रिजल्ट निकालोगे तो देन यू विल यूज cos अल्फा इन दैट फॉर्मूला. Yeah. और जब Okay. आप डायरेक्शन निकालोगे यू विल राइट इट tan theta. It doesn't matter. What matters is what is the final answer, what came as a final answer. So I wrote alpha is 37. It doesn't matter what you assumed. The answer will not be alpha is 37. Answer will be 37 from north towards east. Clear na? Sir, Yes, sir. actually, I had asked for the directions and another girl, she asked for the 37 degree. So can you Yeah. explain the directions? Yeah, sure. Okay, yeah, Tanvi. Wait. So first thing, this 37, I guess everyone has got this. We have to learn this value. That's it. अभी कोई इसका point नहीं है that how we got this value, huh? We have to learn this value to answer it in the exam, huh? Fine ना? यार बताओ. ये Yes, sir. हाँ. समझाना, ये लर्न ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. हाँ, डायरेक्शन वी कैन सी हाउ टू रिप्रेजेंट सर्टेन डायरेक्शंस. सो दिस प्लॉट यू गॉट, ये these 8 directions. With respect to these only we answer, huh? अब I'll draw certain random values. Suppose this is my figure number 1. मुझे इसका डायरेक्शन बताना है. This one is my figure number 2. ठीक. Then another we have let's say Sir, can it be northeast towards north? I'll explain how with how many times we can write the direction. I'll explain, हाँ. फिर डिस्कस करते हैं. So let's say I have picked 3 directions. अभी मुझे इनको लिखना है कि how to write these directions. So I'll pick values. Suppose this angle is 30 degree. This angle is 60 degree. And this angle is, let's say, 140 degree. Now, how to write these in the form of direction? Then vector, I'll write vector. Vector number 1. बताओ वेक्टर नंबर 1 की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? सो कैसे लिखते हैं डायरेक्शन? देखें अच्छे से. वेक्टर 1 बिलोंग्स, इट इज 30 डिग्री. 30 डिग्री कहां से है? फ्रॉम विच साइड? From north towards east. ए From फिर से देखो. Not from east East towards to north, so I cap From- 30 degrees, something like that. फ्रॉम ईस्ट East to what's not. north. टूवर्ड्स नॉर्थ. अभी पॉइंट क्या है? इसको ऐसे लिखते ही नहीं है. ये तो इंग्लिश की बात हो गई, ये फिजिक्स है ही नहीं है. फिजिक्स तो अपन शॉर्ट में सीखेंगे ना कि शॉर्ट में कैसे लिखते हैं. तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? Sir, is 30 it like degree. 30 Yeah. degree I cap? नहीं, नॉट आई कैप ना. आई कैप विल बी I cap तो east बन गया ना ईस्ट sir. हो गया ना. हाँ. ये तो बीच का है ना, ऐसे लिख नहीं सकते हैं. आगे Then बताएंगे we इसे can कैसे say लिखेंगे. I to J. नहीं, शॉर्ट फॉर्म में आई टू जे भी नहीं लिख सकते. पहले इसको, इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे That कि is a इसे क्या big लिख सकते हैं. parameter. I to J, it can हाँ. be anything. So I to J can be anything. We'll learn कि इसे कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में. Before that, first we need to write it in short format. So short format में दो चीजें हैं. Either we'll write it 30 degree NE or 30 degree EN. What do you think? Which thing should be correct? I have given you two options. Either we'll write 30 NE or 30 EN. Sir, I What do you think? Which EN. should be correct? 30 EN. 30 EN. Okay, ठीक है. So Sir, 30 degree. aren't they the same thing?
no, they aren't the same thing. I'm going to explain. Just wait. Kya? This is a wrong representation. Okay? This is the correct one. I'll say why. Let me explain why. You need to learn this because these are the standard representation. This thing, this NE, we read it like this. This mean north of east. These two letters are read by north of east. So suppose मैंने लिखा हुआ है 30 degree SW. So what do we mean by this? 30 30 degree degrees south south of of west. साउथ ऑफ वेस्ट. अभी इसे थोड़ा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल कहाँ से मेजर हुआ है, साउथ से या वेस्ट से? वेस्ट से सर, वेस्ट से। रेफरेंस लेके It साउथ says- के तरफ. Exactly. West So the का south second part. letter is reference. I mean to say is the second letter is reference. So I'll write. अगर मैंने लिखा है थीटा डिग्री SW, so इसका मतलब होता है साउथ ऑफ वेस्ट. So the important thing to learn is that the second letter is reference. The second letter is reference. So is it clear or not how to write a standard direction or how to read a standard representation? You will see बहुत सारे movies में या books में ऐसा लिखा होता है 25 degree NE. So how you got the idea कि ये 20 degree NE का मतलब क्या है? इसका मतलब ये what is our reference? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सो रेफरेंस ईस्ट है. Reference east है है? written in our compass of mobile. Yeah, exactly. From that compass में N E ये all 5 ये होते हैं जो मैंने यहाँ पे represent किए. कंपास में सिर्फ ये 8 डायरेक्शंस लिखी होती हैं ऐसे. यूजुअली तो ये 4 ही होती हैं, बट इन सम केसेस दीज आर आल्सो मेंशन्ड. Sir, our geographical coordinates measured the same way. Exactly, our geographical coordinates are measured in this reference only, like this only. So the second letters come as a reference. So suppose मैंने कहीं पे लिखा हुआ है it is 80 degree WN. So what do you think आपको किस डायरेक्शन में जाना है? Give me an idea. नॉर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में जाना है. Yes, very good. What is our reference? वेस्ट ऑफ नॉर्थ. That means reference is our नॉर्थ. north. So we'll pick from the north. But which side 80 degree? वेस्ट. West side. That means we need to go in this direction. I guess आ गया आपको idea, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Second Sir, I have letter a is question. reference. So let's pick what we'll write to the this direction vector 2. 60 degree कहाँ से है ये? 60 degree. नॉर्थ, ईस्ट ऑफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. North of North east. of east. Very good. NE अभी आ गया आएगा. आप लोग को idea. अभी आ गया एकदम idea. East is our reference and we are at 60 degree from the east. So we'll write we are north of east. Sir, मतलब then east it से will be 30 degree east of north in the opposite direction. yeah, you can say that, no problem. If you know this coordinate that this is 60, so you can say it is 30 degree east of north, no problem. And sir, So in I'll this write- case, the 140 will be referred to east, right? Yeah. So just a minute, wait a minute. Let me write first this. Let me write vector 2. I'm going to write in these two manners. Number 1, I'll write 60 degree. It is north of east. So this one is correct. Fine. Second one is possible. 30 degree. It is east of north. ये correct है. और अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया और 60 डिग्री EN, तो ये गलत हो गया यार. Our vector 2 is not 60 degree east of north. But Okay. sir, in none of the maps I have seen EN or WN, WS is mentioned. Yeah, usually from the no. These values na. Yes, sir. Like northeast, northwest, it is like that, right? In maps usually.
Yeah, in usually maps, these two are taken as reference, like N and S only. So usually you will see NE and NSE, so SW, But these sir, sort So of ES in is things. not. maps, all references are clockwise, never anti-clockwise. That is why. Yeah. Yeah, Sir, yeah. sir, what if there is a 45 degree, like 45, then you can write both the values. For 45 is an actual reference which you can write NE or EN. 45 degrees NE or EN, or you don't even need to write 45. If you only write NE, it means 45 degree. Clear? yeah, तो यहाँ पे पहले मैं वेक्टर 3 लिख देता हूँ. वेक्टर 3 कितना है? 140. So 140 कहाँ से है? ईस्ट से. बट याद रखे 140 कभी भी नहीं लिखा जाता है. The angle are 0 to 90 only. ओके, okay, तो Yes, इसे yes. कितना लिखेंगे? 40 डिग्री किस तरफ? नॉर्थ के साइड पे. north to west. सो वेक्टर 3 देखे क्या हो जाएगा? It will be WN. यस, सो इट इज WN. नहीं, देखो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री No sir, 50 एंड degree. W. North to west. 50 degree sir. नहीं 140 है ना, सो 180 से माइनस करेंगे ना. Okay sir, from that side. Okay. या 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट. और अगर हमें लिखना है तो 50 डिग्री West north. north. वेस्ट ऑफ नॉर्थ. ओके, Yes, sir. सो ये वेक्टर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक यहाँ पे स्टार मार्क वाली पॉइंट, इफ और when only NW is written, इसका मतलब क्या होता है? It means at 45 डिग्री. क्लियर ना? बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो 45 डिग्री. ये डायरेक्शन सेंस समझ आ गया ना सबको? सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? हाँ sir. Yes. सो अब बिकॉज हमने सेंस ऑफ डायरेक्शन सीख लिया, I'll frame my example as per this only. Okay, so I'll say two forces are acting towards 30 Newton or let's say 40 Newton east and 80 Newton 30 degree EN. Then find their resultant force and final direction of resultant. अच्छा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब क्या होती है? फाइनली वो बॉक्स किस तरफ जाएगा, मतलब किस तरफ वो रिजल्ट फोर्स फील करेगा. ओके, समझ आया क्या क्वेश्चन? तो यूजुअली मैं Yes, सिंपली yes. लिख देता हूँ क्वेश्चन, बट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन जस्ट द डायरेक्शन सेट, आई विल एक्सप्लेन इट विद दीज वैल्यूज. सो अभी आपको प्लॉट करना पड़ेगा. हाँ, फर्स्ट फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है? First force east के तरफ. That is 40 newtons. ओके, सो ईस्ट के Right तरफ side. 40 न्यूटन. सो दिस इज लाइक 40 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. व्हाट इज दिस सेकंड वन? 30 डिग्री EN. 80 newtons east of north. हाँ, मतलब रेफरेंस क्या है? North. नॉर्थ. North. हाँ, किसके तरफ? East की east तरफ. के तरफ. ईस्ट की तरफ. सो एज पर द क्वेश्चन दिस थिंग इज 80 न्यूटन और एंगल गिवन कहाँ से? यहाँ से 30 डिग्री गिवन है. सो आई गेस आप लोग समझ गए ना? Yeah. Yes sir. तो इसका मतलब आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है? आपको सॉल्व करना है दैट द टू फोर्सेस आर लाइक दिस ओनली. ओके,
What is the angle between them? 60 degree. 60 degree. Now you can proceed for solving the resultant. So everyone remember the formula? Learn है पूरा सबको formula? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so anyone explain? I'll solve that formula. Resultant is Sir, a square plus b square plus 2ab multiplied by cos theta. very good यार, और सही है. रूट में आएगा. So let's use these values. I'll write 80 square plus पहले 40 है. 40 square plus 80 square plus 2 into 40 into 80 into cos 60 degree. यार अब देखो लर्न होना चाहिए. If you do not know the cos 60 degree फिर आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना. 1/2 आएगा सर. 1 by 2. Okay. लर्न रखनी है ये वैल्यूज, देन ओनली यू विल सर इन दिस केस अगर हम 40 को 80 से डिवाइड भी करते हैं तो भी 1/2 ही आता है ना. तो नो दैट विल बी ना वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो नहीं ठीक है. दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. वो नहीं करना है अभी. दैट डिवाइड इज ओनली फॉर tan applicable for perpendicular vectors. For vectors inclined that is not the case. ओके सर. ठीक है. So even I should change my question a bit. I'll make it 40 only because that will be hard to find that initial thing. So अभी मैं इसे change करता हूँ. I'll make it 40 only. There is a reason for making it 40 because that tan formula is valid for perpendicular sections only. Okay, not Yes, on a sir. different angle. So let's solve this then. So अभी देखो क्या आ जाएगा. What will be the result? It's like 40 square. I'm not breaking the square thing because 2 into this thing is also like a 40 square ना. हाँ. और And multiplied cos by 60 1/2. yeah, cos 60 is 1 by 2. So now I know कि cos 60 की वैल्यू यहाँ पर मैंने यूज कर ली है. It is 1 by 2. सर हम और बस अभी 1/2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं. yes, this 2 and this 1 by 2 will cancel out. So sometimes क्या होता है कि सिचुएशन हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. It feels like कि 40 square is there, 40 square is there, 40 square is there. It is like x, x, x. So what will be the total? 3x. 3x now. So these fast method you should start using कि 40 40 40 अगर सेम नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा. सेम है so we can directly say ना this thing will become 3 times of 40 square. 40 square. अभी मुझे पता है कि 40 तो बाहर आ जाएगा बट √3 बाहर नहीं आएगा. So मुझे √3 की वैल्यू लर्न रखनी चाहिए थी. So the resultant is of course 40 √3 is an answer. But sometimes the answer might not be in square root. तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी. क्या वैल्यू होती है √3 की? कल बताया था 1.732. वेरी गुड यार 1.732. सो ये चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. देखें फाइनल मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा. 4 to 8 12 2 1 9 2 6. So 69.28. क्लियर ना. Yes, sir. This much force will feel by the resultant. और बताओ डायरेक्शन क्या होगी. तो डायरेक्शन हमें सोचने की जरूरत है क्या. think of it like the two forces were being pulled at this 30 degree. 40 So they and will be in the 40. middle, right? Somewhere in the Very middle. good, very good. Somewhere in the middle nahi exactly at the Exactly, middle. because both are same. Yeah. Both are same. So the final direction will be at the middle. So I can write the final direction is 30 degree this. So the final direction, what is the final direction? 30 and E. Yes, very good यार. So क्या हो जाएगा 30 degree degree. and E, north of east. Okay, समझ आया ना यार. Yes, sir. तो इस तरीके से हम चीजें पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं. ये एग्जांपल मतलब अभी एट रैंडम कर दिया मैंने बिकॉज रिसेंटली मैंने आपको डायरेक्शन समझाई है, तो ये जस्ट उसके लिए ही था. तो बता यार यहाँ पर हमें आज का जो हमारा पॉइंट था रिगार्डिंग द डायरेक्शन एंड वेक्टर रिजल्टेंट, दोनों चीजें समझ आई हैं या नहीं. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा पार्शियली तो समझ आया ना.
एक बार जब आप फिर से रीड करोगे, नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक बार अच्छे से रीड करोगे, आप फिर मुझे डाउट्स बताना, तो अपन उन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद कई बार क्या होता है, मैंने बताया था कि हमें एंगल्स ज्यादा चाहिए होते हैं, मतलब बड़े एंगल्स चाहिए होते हैं, मतलब सपोज दो फोर्सेस ऐसे रखे हैं, तब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने तो सिर्फ 90 तक याद किए है ना? Sir, Yes, sir. Sir, we can derive by you have told last class. Yeah, that I am going to write now actually. So the values of angle more than 90 degree. So Sir, कैसे Sir, निकालते हैं? लेकिन won't the calculations which have imperfect square roots will always be inaccurate at a certain limit because they Yeah, are they will irrational. be inaccurate, no problem. But we don't want to like bother about those inaccurate values. These are like approximation. It will be somehow 69.28 newtons. That's enough. So Yeah. because we are not just a scientist or we don't need to use calculator, so we can just approximate up to 2 digit only, huh? So up to 2 digit is enough for us. Okay, so the value of angle more than 90 degree, so it involves two things. Number one, always give your answer from 0 degree reference line or 180 degree reference line. Okay, पहली चीज. दूसरी चीज, give the value with proper sign of quadrant. Proper sign of quadrant. क्लियर? सो ये दो चीजें अगर आपको लर्न है तो आप तुरंत एंगल लिख लोगे. अब व्हाट आर द प्रॉपर साइन ऑफ क्वाड्रेंट, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. कैसे? आई राइट फॉर ईच. फॉर साइन, सो रेफरेंस आपको क्लियर है, ईदर यू नीड टू पिक फ्रॉम 0 डिग्री और 180 degree, but the thing is it has to be acute. So always give your answer of acute angle. Always give your answer in acute angle from 0 degree और दिस रेफरेंस. तो 0 डिग्री ये है. तभी क्वाड्रेंट में आपको लर्न करना होगा कि अगर आप किसका लिख रहे हो, किसके बारे में लिखना चाह रहे हो, साइन थीटा के बारे में. सपोज आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हो, साइन थीटा के बारे में. तो लेट्स से ये मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में. तीन ही लर्न करने हैं आपको. वैसे साइन थीटा काम भी नहीं आने वाला. हमारे में किसका फॉर्मूला यूज होता है, Cos theta. कॉस थीटा का. तो कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा को अभी जरूरत नहीं है. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप टेंशन नहीं ले. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री. tan theta, references are fixed, either you need to pick from 0 or 180 degree. The constraint is angle has to be acute. अच्छा, अभी देखें तो साइन क्या होता है. साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव. क्लियर? कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव. फीलिंग देख रहे हो? tan इधर Yes, पे sir. पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. देख लो, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो काम बन जाएगा. इन दोनों में साइन पॉजिटिव और नीचे की तरफ साइन Negative. नेगेटिव. कॉस क्या है, उल्टा है. इन दोनों में पॉजिटिव और इस तरफ negative. नेगेटिव. tan का यार क्रॉस होता है. तो अभी नोटिस करो क्या कि ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि 0 to 90 में कहीं पे नेगेटिव दिखाया क्या मैंने? नहीं sir.
सारे sir. पॉजिटिव ही थे ना, तो काम बन गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल 180 से मेजर करना। तो एग्जांपल वाइज सीखना, देखना तुरंत आ जाएगा आपको, एक भी टेंशन ही नहीं लेना, देखना आराम से देखेंगे स्टेप वाइज। मैंने बात की क्या, साइन 120 डिग्री बताओ। तो यार 120 डिग्री तो एक्यूट है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसका No. मतलब इससे मेजर कहाँ से करेंगे, इधर 0 से या फिर 60 लेना 180 से। पड़ेगा। यस, 180 से we can तो measure. 0 से ये कितना है अभी, 120 है। 120. तो मैं We can लिखूंगा take कि 60. 120 डिग्री इज नॉट एक्यूट, बट अगर मैं इसे उल्टा ले लूं यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 डिग्री इज एक्यूट, 60 डिग्री एक्यूट। और कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम 180। Not. 180 रेफरेंस, फ्रॉम 180 डिग्री रेफरेंस। Sir. Yes. तो टेंशन ही नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मुझे साइन 120 डिग्री पूछा हुआ है तो टेंशन लेना ही नहीं है, इसकी वैल्यू किसके जैसे दिखेगी, साइन 60 डिग्री। अब द सेकंड थिंग इज साइन, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो क्या है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। तो आंसर आएगा साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड Because- क्वाड्रेंट में है। यस, बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर ना, तो मुझे लगता है समझा होगा आपको, अभी समझ आया ना। यस सर। Yes, sir. चलो और देख लेते हैं, चलो आप लोग को पूछते हैं, आप लोग बताओ tan 135 डिग्री कितना हो जाएगा, सर 135 या 130? यार 135, ठीक है। चले तो क्या करेंगे अपन, ऐसे प्लॉट करेंगे, 35 कहाँ पहुंच जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो 135 ज्यादा है, तो हम क्या पिक करेंगे, स्मॉलर वाला। सो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। सो इसका मतलब ये क्या हुआ, 45 डिग्री एक्यूट है, तो मतलब बढ़िया है। 1 आ जाएगा आंसर। 180 डिग्री रेफरेंस है, तो कोई टेंशन होता नहीं है, फ्रॉम 180 डिग्री नेगेटिव रेफरेंस। -1। यस, सो ये क्लियर है। बट अभी एक पॉइंट है कि इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, tan थीटा Negative. नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका मतलब tan 135 की वैल्यू आपको दिखेगी जरूर tan -1। 45 की, बट साथ में क्या रहेगा, एक माइनस रहेगा। और ये माइनस कहाँ से पता चला, हमें इस लाइन से पता चल रहा है। क्लियर ना, यस Yes. सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, tan 135 -1। सो आई गेस यू कैन फाइंड एनी वैल्यूज, डन ना। यस सर। तो चले एक एग्जांपल देखते हैं और पता चल जाएगा आप लोग को कि इसको यूज कैसे करना है। सो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस ऑफ गिवन फोर्सेस। ओके, सो इसका मतलब देखिए, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस मतलब ये बॉक्स है और दो स्टूडेंट या दो पर्सन है, कुछ कोई एक इधर पे लगा रहा है 100 न्यूटन और एक इधर से पुल कर रहा है और 100 न्यूटन पे ही, ठीक है, ये भी पुल कर रहा है 100 न्यूटन पे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। सो बताएं रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट देन। तो यार अपना क्लियर है ना आइडिया कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट। यस सर। या बताओ यार फॉर्मूला रिजल्टेंट का, रूट ऑफ a² + b² + 2ab मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अच्छा अभी पता है क्या होता है, अभी ये ऐसा हुआ करता है कि यार फिजिक्स में देखो यार ये सेम है ना, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करो, क्योंकि बार बार 100 लिखोगे तो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ना। सो लेट्स से मैंने लिख लिया एज्यूम x = 100, सर ऐसा हम इधर कुछ 2 हम इधर सीधा 2 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स, 100² लिख सकते हैं। हाँ 2 × 100² भी लिख सकते हैं, या मैंने ऐसे ज्यूम कर लिया ताकि आपको
देखने में और क्लैरिटी आए कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 x इंटू cos 120 डिग्री। यार अब ये तुरंत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया? तो कैसे करेंगे, साइड में बना लेंगे यार। समझाया ना कैसे निकालते हैं एंगल? ये बनाया हमने, cos कहाँ पर है, यहाँ पर 120 पूछा है। सो क्या हम 120 तो एक्यूट नहीं है ना, तो हमें कहाँ से एंगल लेना पड़ेगा, 60 -60 आएगा। 60। सो इसका मतलब ये होगा कि बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो आई विल राइट कि cos 120 इसका मतलब होगा नेगेटिव, और एंगल कहाँ से मेजर किया 180 से, तो क्या आ गया cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ। -1/2। तो आंसर क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो देखो अभी सॉल्व करें। चलो अच्छा एक्स हटा दो यार, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोग को, इसलिए 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू cos 120। सो इसका मतलब ये तो 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर हुआ ना, या फिर रहने देते हैं, रुकें, 100 स्क्वायर अभी रहने देते हैं, 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर इंटू cos 120 कितना है, -1/2 -1/2 ना। सो 2 तो कैंसिल आउट होगा, बट बाहर क्या आ जाएगा, -100 स्क्वायर। यस। सो इट विल बी लाइक 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, और ये कितना आ गया, -100 स्क्वायर। तो कैंसिल आउट हो गया, और कितना बचा, ओनली 100। सो 100 बाहर स्क्वायर। क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, 100. तो इसका मतलब देख रहे हो कितनी बेवकूफी कर दी। अगर दो लोग ऐसे 120 डिग्री एंगल पर पुल करेंगे तो उनका एफर्ट पूरा वेस्ट हो रहा है। बॉक्स कहाँ जाएगा, ऐसे बीच में से जाएगा, और कितने फोर्स फील करने वाला है नेट, वो 100 न्यूटन 60 डिग्री पे। सिर्फ 100 न्यूटन 60 डिग्री पर फील करेगा। समझ आया ना? यस सर। Yes, तो sir. ये आइडिया रिजल्टेंट का हमें लग रहा है क्लियर है। सर क्या ये इज इट सो कि अगर एवरी टाइम 120 डिग्री दिया है और दोनों भी फोर्सेस सेम है तो आंसर सेम ही रहेगा? सेम आएगा, डेफिनेटली सेम आएगा। ये बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन है, और ये हमें करते रहना चाहिए। फिजिक्स में हमें ये चीजें थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। एवरी टाइम यू विल have a angle of 120 degree, and if the values are same, definitely the resultant will be same. It will come out to be 100, क्योंकि देखो हमने कहीं पे यूज नहीं किया, 100 को ब्रेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सॉल्व करते गए और आंसर 100 ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, सो डेफिनेटली ये एक कंक्लूजन हो सकता है इस थ्योरी का, कि अगर 120 पे दो फोर्सेस हैं, सो डेफिनेटली आंसर उनके जैसा ही आएगा। ठीक है। यस सर। तो मुझे लगता है ये जो वेक्टर का आइडिया हम बताना चाह रहे थे, ये अभी आप लोग को क्लियर है। वेक्टर के आइडिया में कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। No, sir. ओके, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं फिर वेक्टर का आइडिया यूज क्या करना है, हमें इसका यूज कहाँ करना है। तो वो यूज करना है हमें मोशन में। मोशन में कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, वैसे ऑलरेडी हमें पता होती हैं, हम बेसिक्स सुनते ही रहते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन में कुछ चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बताएं, आपको पता है ऑलरेडी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस यस। Anyone Total path definition? traveled. Yeah, the length of total path, the length of total path covered। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, The shortest distance Shortest between the distance. starting and the ending point. yes, very good। So it is like, it's like the shortest path, or the length of shortest path, रियल और इमेजिनरी, मतलब जरूरी नहीं है कि रियल में हो। the shortest path, the length of shortest path, क्लियर। दोनों का यूनिट क्या होता है, yes, both has same unit as meter, both has same unit, और वो यूनिट क्या है, like मीटर,
किलोमीटर, सेंटीमीटर लाइकवाइज रहेंगे, सेम यूनिट, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस कैसी चीज है? डिस्टेंस इज स्केलर while displacement is Vector. Vector. वेक्टर। सो मतलब मेरा पर्पस ये है आपको ये समझाना है कि डिस्टेंस की बात आई तो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस लगा के ऐड करो, बट अगर वेक्टर की बात आई तो आपको ये जो प्रीवियस अभी नॉलेज हमने सीखा है ये पूरा यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यूज कैसे करना पड़ेगा ये अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज इफ आई पिक अ एग्जाम्पल लाइक दिस, a person started from point A, so it went on point B, then further up till C, then it went till a point D, and then it came down to E. Now the thing is, it has been asked find the final position or displacement. Find distance and displacement of the given journey. कौन सी जर्नी? ABCDE की। कंफर्म? ये समझ आया क्वेश्चन क्या है? नाउ यू विल बी गिवन द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ। सो सपोज ये डिस्टेंस है कितनी? 10 मीटर, ये डिस्टेंस है 12 मीटर, ये डिस्टेंस है 15 मीटर। ये समझ आ रहा है Yes, your yes. point? Okay, and this distance is, let's say, 25 मीटर। ठीक है, और लेट्स से 22 मीटर ये डिस्टेंस है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? सब ऐड Distance. करके हैं। यस, सो डिस्टेंस का मतलब क्या करेंगे? सब Addition ऐड करके करेंगे। बताएंगे। टोटल पाथ तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 प्लस 59 meter. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी ना? नहीं सेम नहीं होगी वैल्यूज, यूनिट बस सेम होगा, वैल्यूज तो अलग अलग होगी ना। 10 20 15 22 कितना है ये? 59 meter. Which is line B, right? 59 meter, yeah, but if I say displacement, so displacement की definition क्या है? everyone, That displacement की, it is the shortest path, real और imaginary, मतलब समझना real और imaginary मतलब there is a wall, इसलिए वो पर्सन यहां से घूम के जा रहा था, तो there is this wall। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, सो यहाँ पे एक वॉल है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये क्या है? एक वॉल। तो क्या वो A to E डायरेक्ट जा सकता है? yes, yes. नहीं। सो इज देयर एनी डायरेक्ट रूट? डायरेक्ट रूट A to E? नो, बट मैंने क्या लाइन लिखी? Imaginary. हाँ, कि डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं पड़ता है कि वो रियल में वहां पे पाथ है या नहीं है, विल ऑलवेज choose what is the shortest possible way to reach A to E. So the shortest possible way to reach A to E is रूट 725। okay, very good. So ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम
सिंपली बता सकते हैं कि इट डजंट मैटर दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर ना? दिस इज अवर यस सर. डिस्प्लेसमेंट. तो इसे फाइंड करना पड़ेगा. तो टू फाइंड दिस यू नीड टू यूज जस्ट द मेन रिजल्ट लॉजिक. क्या क्या रिजल्ट लॉजिक है कि देयर इज सम स्टेट हाइपोटेनस मूवमेंट निकालना है. एंड ये हाइपोटेनस निकालना आना चाहिए. सो दिस इज हाइपोटेनस. So sir, अच्छा, we can take the axis as one side yeah, and then yeah. So you see the base will be how much? Till this 25. it was 10 and then it was 15. 15. While initially 12 was reduced, so कितना remaining बचा? 10 बज गया. 10. तो इसका मतलब क्या हुआ? It is a hypotenuse which you can solve it like this. क्या आ जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट? यस, रूट ऑफ 10 प्लस 15 कितना हुआ? 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सो कितना हो गया ये? रूट 725. यस, सो इट इज 100 रूट 725. ये बता पहले ये समझ आया कि नहीं ये पॉइंट? अभी ये मैं रूट ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग आगे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि रूट में वैल्यू क्या होगी. आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया. यहाँ तक समझ आया कि नहीं? Yes sir. यस सर. अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि हमने जो वेक्टर पढ़ा वो तो हमने यहाँ पर यूज ही नहीं किया ना. हाँ. क्या वेक्टर जैसा कुछ यूज किया है क्या? नहीं No sir, सर. we don't know the direction. But displacement we is a knew- vector quantity. we knew na direction, displacement is a vector quantity. So sometimes what may happen, figure आपको दिया ही नहीं है, so it might become a bit complex to search from the figure. So vector technique is used without solving the figure, without using the figure. So I'll solve using the vector. समझ आया? Solving. तो सर क्वांटिटीज बाकी की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी if that हाँ is the मतलब case. सब कुछ स्पेसिफाइड ही है. सॉल्विंग यूजिंग वेक्टर. सो रिजल्ट का मतलब क्या होता है? सबको ऐड कर देना, बट किस फॉर्मेट में? वेक्टर फॉर्मेट में. सो आई विल से डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज रिजल्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स. सो देखो रिजल्ट ऑफ ऑल वेक्टर मतलब कैसा दिखेगा? सबसे पहला फिगर में बताओ, सबसे पहला किस डायरेक्शन में जा रहा है? ए टू बी. ए टू बी ईस्ट में जा रहा है सर. ईस्ट में जा रहा है. सो क्या लगाएंगे उसके साथ? आई कैप. Okay. प्लस नेक्स्ट 12 कहाँ जा रहा है? North. और तो जे कैप J cap. लगाएंगे. प्लस नेक्स्ट 15 कहाँ जा रहा है? ईस्ट जा रहा है. आई कैप. आई कैप. फिर नेक्स्ट South. साउथ माइनस जे कैप. माइनस जे कैप. हाउ मच? 22. 22 जे कैप. ये सिचुएशन आ गई. सो इसका मतलब आई कैप कैन बी एडेड विद आई कैप ओनली. याद है ना? सेम डायरेक्शन होंगे तो क्या करेंगे? Add. ऐड कर देंगे. तो ये कितना आ गया? 25 आई कैप प्लस ये 12 है और ये माइनस 22 है. कितना आया सॉल्व होके? 10. 10 Minus 10. माइनस 10 है. जे कैप. J cap. So this is a displacement vector. This is a displacement vector. From this vector you have all और सर values here you the need. minus denotes the direction, right? direction. Minus So we denotes can the put that direction. in brackets So sir. yeah, but abhi let's say you can put it in the bracket or without the bracket is fine, no problem. Now what will be the result of this? Resultant value. तो आपको याद है ना मैंने बताया था कि हमें किसको किसको सॉल्व करना है? हमें आई को सॉल्व करना है और माइनस जे को सॉल्व करना है. सो ये दोनों कितने एंगल पर हैं? 90. रिमेंबर, अगर कोई दो चीजें 90 डिग्री में है तो क्या कर देते हैं? 10. रूट ऑफ डायरेक्टली कर देते हैं 25 स्क्वायर प्लस 10 square. 10 स्क्वायर, बिकॉज 25 एंड 10 आर परपेंडिकुलर. मतलब ये है हमें ऐसा कुछ पाइथागोरस फिगर वगैरह की जरूरत नहीं हुई. हमने डायरेक्टली अपनी रिजल्टेंट वैल्यू निकाल दी यहाँ से.
सर इससे एंगल निकाल पाएंगे? बिल्कुल एंगल निकाल पाएंगे. यू नीड टू प्लॉट दिस. लेट्स प्लॉट. चलो प्लॉट करते हैं. प्लॉट कैसा दिखना चाहिए? प्लॉट दिखना चाहिए आई कैप की तरफ 25. कितना? आई कैप की तरफ 25 25 और माइनस जे कैप की तरफ 10. 10. क्लियर? सो यार समझ जाओ. अभी समझ गए ना? क्या रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? बीच में से. और किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा? towards I cap. I cap. टुवर्ड्स आई कैप. दिस. क्लियर? और 90 डिग्री है, देन यू नो कि फाइनल किस तरफ होगा रिजल्ट. तो ईस्ट ऑफ साउथ आएगा वैसे. एग्जैक्टली. रिजल्ट कितना होगा? tan अल्फा निकाल सकते हैं ना? क्या होगा बताओ? tan अल्फा कैसे निकालेंगे? जिससे निकाल रहे हैं उसको कैसे रखेंगे? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में. तो आंसर क्या आएगा? tan अल्फा 10/25. 10/25. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/5. हाँ Clear? 5. 2/5. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/5 मतलब 0.4 के आसपास. अब क्या है, क्वेश्चन में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपको वैल्यू दी नहीं थी. आपको ऐसे लिख सकता है 37 30 और 37 के बीच में कहीं तो. एग्जैक्टली. अभी थोड़ा मिस हो रहा है. tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3 होता है. अच्छा 1/√3 की वैल्यू कितनी आती है? याद करो क्या बताई थी? नियर अबाउट 0.57. हाँ. मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट मैंने कहा था कि लर्न करके रखो यार. प्रीवियस लेक्चर में लिखाया हुआ होगा. देखो लिखाया है ना? Yes. यस सर. हाँ. थोड़ा सा चीजें 0.57. फास्ट सॉल्व करने के लिए लर्न करके रखेंगे अपन. तो ये रखा. तो देखो यार इससे भी कम है ना. तो 37 तक क्यों पहुंच गए आप? ओके 37 सर. कितना होता है? 37 होता है 3/. 3/4 आएगा. ये वैल्यू तो आएगी 0.75 ना. बिटवीन वहां 0 तक एंड पहुंचना ही 30. नहीं. बिटवीन 0 एंड 30. और देखो बहुत ज्यादा नहीं, 30 से थोड़ा ही कम होगा. Hmm. तो ऑप्शन से तो दिख जाएगा आपको कि क्या होगा. अदरवाइज आपको वैल्यू दे देगा. तो पता है ये tan जब हम अपोजिट साइड लेके आते हैं तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. टेंशन नहीं लेना है. इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. tan पे हम इनवर्स लगा सकते हैं. वी कैन राइट tan इनवर्स 0.4. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी. दिस वैल्यू will be given in the question. Okay, given in the question. Clear है ना? समझा? Okay, just give Yes, me a yes. sec. Okay, just a minute. या ठीक है. सो ये पॉइंट समझ आया. ये आपको दिया होगा कि 10.4 किसकी वैल्यू है? लेट से 23 डिग्री की है. तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आंसर क्या आ गया? 23 डिग्री. समझा ना? Yes. हाँ. सो इसका मतलब होगा इतना. बट डायरेक्शन क्या है? कहाँ से है? SE. समझा? हाँ सर. Yes, sir. ये जो एंगल है हमने कहाँ से मेजर किया है? ईस्ट से मेजर किया है. सो इसे लिखेंगे SE, साउथ ऑफ ईस्ट. ओके. okay. हाँ. तो यार आज काफी ज्यादा एकदम न्यू. अभी आपके लिए वेक्टर जो है एकदम न्यू है. यू वर यूज टू यू आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स ना. ठीक है. और इन्हें अगर हम बात करें तो वेक्टर से क्यों इजी होगा? क्योंकि मैंने अभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट नहीं की है. मैंने आपको इजी सिंपल सा दिया हुआ है. सो यू कैन यूज पाइथागोरस. What will happen if you won't be able to use Pythagoras?
तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वेक्टर। वेक्टर टेक्निक। ओके, ओके, सो लेट्स सी अभी क्या सिचुएशन हम बना लेते हैं। अब हम ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जिसमें हम एंगल चेंज कर देते हैं, पाइथागोरस नहीं लगा पाना होगा। मतलब कुछ ऐसा कि एक पर्सन ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे टर्न हो गया। अभी बताओ पाइथागोरस लगा पाओगे क्या? नहीं सर, No, sir. 90 नहीं। डिग्री है ही नहीं। ये बिल्कुल भी ऐसा 90 डिग्री जैसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये फिगर, ये ऐसे 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 कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमारा काम एकदम इजी बन जाएगा अगर हमें सबके क्या पता है, वेक्टर पता है। तो दिक्कत ये है, इनके वेक्टर तो मैंने सिखाए हैं आपको, इसका वेक्टर लिखना कैसे लिखोगे? ये तो मुझे पता चल रहा है कि ये कहाँ पर है, ये इस क्वाड्रेंट में है, तो पक्का इसमें क्या आएगा, माइनस आई कैप आएगा और माइनस जे कैप। बट क्या मैंने भी वेक्टर फॉर्मेट लिखना सिखाया क्या? नहीं सर। अपार्ट फ्रॉम आई जे तो लिखाना सिखाया ना। यस सर। अपार्ट फ्रॉम आई जे कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पर दोनों चीजें आएंगी क्या? सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टू राइट any distance or displacement in vector format. So writing vector format, vector format। अच्छा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या है, देखें, इसका मतलब ये, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर द वेक्टर इज। पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो सपोज यू हैव आइडेंटिफाइड दैट योर वेक्टर लाइज हियर एट एन एंगल दिस थीटा। अभी फिर से पूछो यार, ये मतलब मैंने थीटा क्यों लिया? ऐसे ही यार, नेम है, थीटा एक नेम है, आपका मन कर रहा है अल्फा, बीटा, गामा, साई, काय, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, थीटा। तो मैंने वेरिएबल चूज है। किया, हाँ, थीटा यूज कर सकते हैं, कुछ भी नेम वैल्यू दे सकते हैं। अगर ये है, सो डेफिनेटली अगर मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूँ, मान लेता हूँ ये क्या है, ए है। सो वेक्टर ए कैसे लिखूंगा, डेफिनेटली वेक्टर ए में क्या क्या होगा, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, प्लस आई कैप एंड, सॉरी, माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप will be the component direction, its component direction, क्लियर क्या? यस सर। Yes. सर अच्छा, लेकिन हमें हाँ, पता कैसे चलेगा कि इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वी हैव टू डिफाइन ना, हम कॉस लेंगे, ना ना tan ना ना, लेंगे। ये ऑलरेडी डिफाइन रहेगा ना। अगर उसने दे दिया कि थीटा एंगल डब्ल्यू एन डब्ल्यू है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ से मेजर किया है, वेस्ट से नॉर्थ में, तो ये प्लॉट कर दोगे ना, ओके, तो वो माइनस आई कैप और पता चल गया। जे यस, कैप में आएगा। ये इसके कंपोनेंट होंगे, जिस भी क्वाड्रेंट में है उनको ही उसके क्या बोलते हैं, कंपोनेंट डायरेक्शन। सो दीज रेड वन आर कॉल्ड कंपोनेंट। क्लियर क्या? कंपोनेंट, कंपोनेंट। समझ आया कि नहीं? तो हर एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। तो अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो आपको दो कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये है कि यार वैल्यू मुझे नहीं पता ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक स्टार्टिंग याद है एकदम, सोचो, जब याद है मैंने बताया था यार, ये ए है, ये बी है, और आपको रिजल्ट निकालना है, ये एंगल। तो बताओ कैसे निकाला था हमने, रिजल्ट निकाला था हमने इन दोनों से, यस सर। ये। तो इसका मतलब इस रिजल्ट के अगर दिया है तो ये दो हम अलग से भी निकाल सकते हैं ना। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है क्या, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा एक कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 किसे बोलेंगे, विद विच एंगल इज गिवन। कंपोनेंट 1 मतलब
कंपोनेंट 1 किसे बोलेंगे? with which angle is given. with which angle is given। और बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमने will इतनी be the ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, denominator. यस नहीं डिनोमिनेटर नहीं, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी ये हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी? इट विल बी दिस ए, जो ए की वैल्यू है, इनटू द कंपोनेंट जिससे एंगल गिवन है, वी नेम इट एज अ cos थीटा। सो देखो तीनों चीजें हमने यूज कर ली। मैंने tan के भी यूजेस सिखा दिए हैं, मैंने आपको cos के यूजेस सिखा दिए। और अच्छी बात क्या है? और अच्छी बात ये है कि ये जो कंपोनेंट नंबर 2 है, परपेंडिकुलर होगा, राइट? यस कंपोनेंट 2 इट इज परपेंडिकुलर टू द रिमेनिंग Okay. एक्सिस। हाँ, उसके अबाउट क्या रहेगा? कंपोनेंट 2 के अबाउट, उसके अबाउट रहता है अपना साइन। समझा? हाँ, सो ये yes, लिखूं yes. क्या कि इट इज अ परपेंडिकुलर? ये लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट द आइडिया कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, a इंटू So component 1 will always be cos क्योंकि वो बेस है. बेस है, नॉट बेस, नॉट बेस, डोंट गेट इट रॉन्ग। इफ आई गिव द एंगल फ्रॉम दिस, which will be cos, this one or later one? This is The first one yes, will be the cos. first one, this one, because what is the definition? With which angle With is which the angle is given. given। Clear? So अभी टेंशन नहीं लेना, 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखना देखना आंसर आ जाएगा। A vector or a distance or a displacement, I'll say a displacement right the 20 meter 37 degree NW displacement in vector format। क्वेश्चन समझा? Yes, sir. अब देखना आराम से देखना, मैं कितना अच्छे से समझा के एक बार में लिख देता हूँ आपको, एक बार में आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? द फर्स्ट थिंग इज टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर। कहां पर है ये? सर्च करो, कहां से एंगल लिखना है? West of north. Sorry, north of west. नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब एंगल मेजर कहां से करेंगे? West से. वेस्ट से। वेस्ट से। सो दिस 37 इज गिवन। तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट आने वाले हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। डन। इसको हमने नेम दिया 1 और इसको दिया 2। अब बताओ 1 कंपोनेंट कैसा होगा? Cos होगा. cos होगा। सो वैल्यू कितनी है डिस्प्लेसमेंट की? 20। 320 है. सो फर्स्ट वन विल बी 20 cos 37। कितना आंसर आएगा cos 37 का? 3/4. No, 4/3. cos 37 4/5। लर्न करके रखना पड़ेगा यार सबको, ठीक है? सो कितना आ गया? 16 मीटर। एंड नंबर 2 कितना आएगा? कंपोनेंट नंबर 2 इट इज 20 sin 37। sin 37 कितना हो जाता है? 3/5। 3/5. तो ये कितना आ गया? 12 मीटर। 12. तो दैट्स इट इज वेरी क्लियर कि ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव जे कैप, और ये क्या है? माइनस I cap. आई कैप। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बहुत ही सिंपल दिखेगा। यू नीड टू राइट इट इन कंपोनेंट फॉर्मेट। क्या आ जाएगा? 16 मीटर पहला वाला है, मतलब आई कैप की तरफ। सो माइनस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द फाइनल वेक्टर। क्लियर? तो अब अगर Yes, ऐसा sir. कहीं फिगर में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये रैंडम है, ये रैंडम है, ये रैंडम है, तो सबको क्या लिखो? इसे लिख सकते हैं ना आई जे में, इसे आई में, इसे भी आई जे में। तो बाद में तो सिंपल हो गया ना, वेक्टर में तो सिर्फ आई को आई से ऐड कर डालो और जे को जे से। Yes, sir. समझा?
तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई एंड जे में आ जाएगा। और आई जे में आ गया तो यू नो कि रिजल्ट कैसे निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर, square क्योंकि plus 90 डिग्री वालों के लिए तो कॉस हो जाता आएगा है। ही नहीं। हाँ तो ये लेक्चर पे बहुत सारी नई चीजें देखी थी। मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम पे ये चीजें टफ जाएंगी, आपको अंडरस्टूड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगी, बट नेक्स्ट लेक्चर में आप जब रिवाइज करके आओगे ना, तो फिर मैं एक बार और क्लैरिटी दिखा दूंगा एंड देन विल सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फिर टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आई विल गिव अ प्रैक्टिस शीट ऑफ होमवर्क 5 to 10 क्वेश्चंस, सो वो तुरंत हो जाएंगे। ओके Yes. ओके चलो यार, फिर बहुत ही अच्छा है। मतलब आप अच्छे से लेकिन रीड करना है। देखो यार, 3-4 चीजें याद करनी है आपको। क्या, साइन कॉस टेन पहले तो याद कर लेने हैं, और फिर रिजल्टेंट, और फिर एंगल निकालना, और अभी जस्ट मैंने अभी क्या सिखा दिया, डायरेक्शंस नहीं कम वेक्टर लिखना, वेक्टर। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना। ये 3 चीजें सीख लोगे, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके यस सर। चले, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। हाँ, एक बार रिवाइज करें, नेक्स्ट लेक्चर में लेट मी नो इफ एनी डाउट इज देयर। हाँ ओके सर। ओके Thank you, ओके sir. देन, बाय बाय देन। हाँ, Yeah. Bye, Yes, sir. sir. Bye, sir. Yes, sir. बाय ऑल ऑफ यू, Thank you, बाय। sir. Have a nice weekend, sir. Yeah, Thank you too, have a nice day। Yeah, bye bye।